Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in this lecture, we will try to understand what are the determinants of required rates of return, or what are the factors that are affecting the required rates of return. As you know that the required rates of return are very important in making investment decisions. So it is important to understand what are the factors that are affecting the required rates of return. So you have studied briefly the time value of money, a pure rate of which is a pure rate of interest or a risk-free rate of interest, then the expected rate of inflation and risk involved. So in this lecture we will study in detail what is the real risk-free rate of return and how this real risk-free rate of return is adjusted for inflation, and how the nominal risk-free rate of return is adjusted for inflation, and what are the different risks involved in the determinants of in determining the required rates of return. So in this lecture, we'll study one by one all the risk factors that can affect the required rates of return. First, we try to understand what is the real risk-free rate. As we have studied that the real risk-free rate is a pure time value of money, or a pure rate of interest, or a basic rate of return, and there is no risk involved with that investment. That is why we call such investment a risk-free investment. In the real risk-free rate, we assume no inflation. There is no inflation in the economy, and we assume no uncertainty about future cash flows. We are 100% sure that we can receive the expected cash flows in future, and it is influenced by time preference for consumption of income and investment opportunities in the economy. जो लास्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन ऑफ इनकम, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर या मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, और हर इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है या जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो आज पैसे को फॉर फ्यूचर, उसकी टाइम प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। यानी किसी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 3 मंथ्स के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 6 मंथ्स के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 9 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, या वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स फॉर। हर एक की जो टाइम प्रेफरेंस है वो डिफरेंट है, और अगर जब टाइम प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं, कंजम्पशन जो है वो फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स के बाद उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, 6 मंथ्स के बाद ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इसी तरह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर बूम आता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, तो फिर आप भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, और जो है वो पैसे दूसरी तरफ से पैसे लेने के लिए भी तैयार हैं, यानी क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे वो जो रिस्क फ्री रेट है उसको अफेक्ट करेगा, और उस इकॉनमी में जो अगर इकॉनमी ग्रो कर रही है, तो फिर रियल रिस्क फ्री रेट जो है वो भी इंक्रीज करे। तो देर इज a positive relationship between the real risk-free rate of return and the growth in the economy. Now we adjust inflation for real risk-free rate of return. और फार्मूला ये है कि 1 प्लस नॉमिनल रिस्क फ्री रेट डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन माइनस 1 प्लस नॉमिनल रिस्क फ्री रेट को डिवाइड कर दिया हमने 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे, और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को, तो हमारे पास आ जाएगा रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि बेसिक रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि एक्चुअल रेट, अगर कोई भी और रिस्क ना हो तो ये वो रेट ऑफ रिटर्न होगा जो कि इन्वेस्टर अर्न करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। Assume that the nominal return on US government T-bills was 9% during a given year. ट्रेजरी बिल्स हैं उसके ऊपर जो है वो 9% नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था। When the rate of inflation was 5%, मार्केट में इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन थी वो 5% थी, then what is the real risk free rate of return? तो हमने क्या किया, हमने सिंपली उसको 1 प्लस 0.09 को डिवाइड किया 1.05 पे और स्प्रेड किया 1 को, तो हमारे पास आ गया है 3.8%। तो ये है आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन। हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन किया है वो बनता है 3.8%।
ये 3.8% है. This is the basic return, or this is the actual return that will be realized by the investor if he or she invests in the risk-free securities. For example, treasury securities. Nominal risk-free rate. Nominal risk-free rate basically is the rate of return that prevails in the market. जो कि मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इन नॉमिनल रिस्क फ्री रेट. ये नॉमिनल रिस्क फ्री रेट है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं. एक इसका कंपोनेंट है रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा इसका कंपोनेंट है इन्फ्लेशन प्रीमियम. यानी ये दो चीजें मिलके नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है डिटर्मिन करते हैं. और नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अफेक्ट होता है या ये डिपेंड करता है अपॉन टू थिंग्स. फर्स्ट इज द कैपिटल मार्केट कंडीशंस एंड सेकंड इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. कैपिटल मार्केट्स क्या हैं? कैपिटल मार्केट्स वो प्लेस है जहाँ पे बारवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे लेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जहाँ पे बारवर्स और लेंडर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन होता है. अच्छा, वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है डिमांड ऑफ मनी और दूसरा है सप्लाई ऑफ मनी. यानी एक डिमांड करता है पैसा और दूसरा सप्लाई करता है पैसा. ये डिमांड एंड सप्लाई है, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो तो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट जो है उसमें चेंज नहीं आता. लेकिन अगर ये डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए तो फिर नॉमिनल रिस्क फ्री रेट जो है वो चेंज होता है, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. अगर डिमांड इंक्रीज करती है और सप्लाई कम होती है तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली जो है वो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट के ऊपर आएगा. इसी तरह अगर डिमांड कम होती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो इसका इफेक्ट भी जो है वो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट के ऊपर आएगा. ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है, बेसिकली ये अफेक्ट होती है फेडरल जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके उसकी वजह से, या जो फेडरल बजट बजट का जो डेफिसिट होता है उसकी वजह से. यानी बजट डेफिसिट इसको अफेक्ट करता है, इसी तरीके से इसको मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट करती है. अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसको आप टाइटन कर देंगे तो इसका मतलब आप मनी सप्लाई मार्केट से कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी. तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आ जाएगा नॉमिनल रिस्क फ्री रेट के ऊपर. इसी तरह अगर आप लूज करते हैं अपनी अपनी मार्केट पॉलिसी को तो आप मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जिससे डिमांड अगर फॉर एग्जांपल उतनी है और मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट के ऊपर आएगा. इसी तरह अगर डेफिसिट है, अगर बजट डेफिसिट है तो जितना अगर बजट डेफिसिट ज्यादा होगा तो वो भी अफेक्ट करेगा डिमांड सप्लाई को, क्योंकि जब बजट डेफिसिट ज्यादा होता है तो फिर जो गवर्नमेंट है या स्टेट है उसको ज्यादा पैसे रिक्वायर होते हैं और वो उसकी उसकी पैसे की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो प्रिवेलिंग रेट है वो अफेक्ट होता है. सेकेंडली जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट के अंदर इंक्रीज करेगी तो वो भी अफेक्ट करेगी नॉमिनल रिस्क फ्री रेट को. तो नॉमिनल जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस इन द कैपिटल मार्केट्स एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे हमने नॉमिनल रिस्क फ्री रेट जो है उसको एडजस्ट किया है फॉर इन्फ्लेशन. तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? वही फार्मूला है जो डिवीजन में था, अब वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया. तो वन प्लस रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से वन को. तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो हमने डिटर्मिन किया था दैट वाज 3.8%, और इन्फ्लेशन जो थी मार्केट में वो 5% थी. तो फिर नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? हमने 1038 को मल्टीप्लाई किया 1.05 के साथ, माइनस किया 1, तो हमारे पास आ गया 9%. तो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट जो था, जो लास्ट एग्जाम प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसमें हमने देखा था कि जो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो 9% है. तो हमने यहाँ से उसको डिटर्मिन कर लिया कि मार्केट में इसका जो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो 9%. Facets of fundamental risk: business risk, financial risk, liquidity risk, exchange rate risk, country risk. So these are the risk factors that can affect the required rate of return. अगर इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री फ्री है, यानी फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट हमने ट्रेजरी बिल्स में की है तो फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और नॉमिनल रिस्क फ्री रेट जो है ये दोनों सेम हो. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की है और उसमें ये रिस्क इन्वॉल्व है या इनमें से कुछ रिस्क इन्वॉल्व है तो फिर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट से ज़्यादा होगा, क्योंकि अब इन्वेस्टर जो है वो रिस्क के अगेंस्ट प्रीमियम डिमांड करेगा. हमने ये ज्यूम किया था कि इन्वेस्टर जो है वो रिस्क अवर्स हैं, तो अगर रिस्क हाई होगा तो वो ज़्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे और अगर रिस्क लो होगा तो वो कम रिटर्न डिमांड करेंगे.
इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी रिस्क फैक्टर। तो इन रिस्क फैक्टर्स को हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। Business risk. So first we discuss business risk. It is the uncertainty of income flows caused by the nature of a firm's business. Sales volatility and operating leverage determine the level of business risk. जो बिजनेस रिस्क है ये डिपेंड करता है उस बिजनेस के नेचर के ऊपर, जिसकी वजह से इनकम फ्लोज में अनसर्टेनिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक आसान सी एग्जांपल लें क्लाइमेट चेंज की, जिसमें हम देखते हैं कि अगर गर्मियों में अगर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है तो जो बेवरेजेस हैं उनका बिजनेस इफेक्ट हो जाता है, और जो इनकम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इनकम अब उनको वो इनकम रिसीव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोक है, पेप्सी है या और बेवरेजेस हैं, तो उनका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा अगर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी मार्केट में। इसी तरीके से अगर विंटर सीजन है और सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती है तो जो वार्म क्लोथ्स का बिजनेस है जिनका वो अफेक्ट हो जाएगा। यानी आप जैकेट्स और आपकी जो जर्सीज जो आप परचेज करते हैं उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो अफेक्ट होगी। तो इस तरीके से जो बिजनेस है ये डिपेंड करता है कि उस बिजनेस का, बास बिजनेस ऐसे हैं जैसे कि उन वो कोई भी सीजन हो उनका उसकी जो बिजनेस है उसकी कैश फ्लोज के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर्स हैं, आप आप इवन कोविड भी हो तब भी आप पहुंच जाते हैं ग्रोसरी के लिए, क्योंकि हर एक की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि जिसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आता है क्लाइमेट चेंज का या किसी और फैक्टर्स का, उसमें कम अनसर्टेनिटी होती है, वो लेस रिस्की होती है। लेकिन ऐसे बिजनेसेस जिसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो वो बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो उसको हम बिजनेस रिस्क के तौर पे कंसिडर करते हैं। इस तरह सेल्स वॉलेटिलिटी है या बिजनेस ऑपरेटिंग लीवरेज है, इसके थ्रू हम डिटरमिन करते हैं कि इस बिजनेस का रिस्क कितना है। अगर आप सेल्स वॉलेटिलिटी उसकी जो वेरिएशन इन सेल्स है उसको अगर आप डिटरमिन करें तो आपको बता सकते हैं कि इसका रिस्क कितना है। इसी तरह ऑपरेटिंग लीवरेज है, ऑपरेटिंग लीवरेज जो है उससे भी हम डिटरमिन कर सकते हैं कि इस बिजनेस का जो रिस्क लेवल है वो क्या है। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज कम हो तो उसका मतलब है कि वेरिएबिलिटी जो है वो कम है। क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है वो ईबीआईटी सेल्स को देख रहा होता है कि अगर सेल्स में कुछ चेंज आती है तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में कितने परसेंट चेंज एक्सपेक्टेड है। अगर सेल्स में अगर 1% चेंज आ जाए और ऑपरेटिंग लेवरेज के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें जो है वो 100% चेंज आ जाए तो इट मीन्स कि इट इज़ हाईली रिस्की, हाईली सेंसिटिव। तो ये चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि उस बिजनेस का रिस्क का लेवल क्या है, और जब इन्वेस्टर होगा वो इन चीज़ों को कंसिडर करेगा और उसके अगेंस्ट फिर रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा। So the other risk premium is the financial risk. Financial risk is the uncertainty caused by the use of debt financing. Borrowing requires fixed payments which must be paid ahead of payments to stockholders. The use of debt increases uncertainty of stockholder income and causes an increase in the stock's risk premium. फाइनेंशियल रिस्क तब एग्जिस्ट करता है जब फर्म जो है वो डेट को यूज करती है एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। जिस फर्म में डेट नहीं होगा उसमें फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा और उसके अगेंस्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्क प्रीमियम डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन जिस कंपनी के अंदर डेट होगा वहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व होगा और उसके अगेंस्ट रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा इन्वेस्टर। अब ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट फाइनेंसिंग की जो परसेंटेज है वो कितनी है। अगर डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा होगी तो उस कंपनी का रिस्क का लेवल भी ज़्यादा होगा, जो फाइनेंशियल रिस्क है। अगर डेट का लेवल कम होगा तो उस कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क जो है वो भी कम होगा। अगर डेट का लेवल ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क प्रीमियम डिमांड करेगा, और अगर डेट का लेवल कम होगा तो इन्वेस्टर कम रिस्क प्रीमियम डिमांड करेगा। दूसरी बात यह है कि जो डेट है उसको आपने पे करना होता है अहेड ऑफ स्टॉक होल्डर्स पेमेंट्स। स्टॉक होल्डर को आप पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, लेकिन जो डेट है वहाँ उसको आप उसके ऊपर जो पेमेंट्स होंगी उनको आपने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले पे करना होता है। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो डेट को पे करना। अगर आप डेट को पे नहीं करेंगे तो फिर वो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टॉक होल्डर को डिविडेंड नहीं पे करते तो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट नहीं होती। तो इसलिए आपने सबसे पहले जो पे करना है वो अपने डेट को पे करना है।
और अगर आप डेट का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे और पेमेंट्स जो है कि अमाउंट बढ़ती जाएंगी, तो फिर स्टॉक होल्डर्स की इनकम जो है वो अनसर्टन होती जाएगी कि पता नहीं उसके लिए कुछ बचता भी है कि नहीं जिसको आप पे कर सकें। अगर जो बचता है तो वो बहुत कम होता जाएगा। जब बहुत कम होता जाएगा तो फिर स्टॉक होल्डर जो है वो रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा उस कंपनी के ऊपर, और वो कंपनसेशन डिमांड करेगा अगेंस्ट द फाइनेंशियल रिस्क। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डेट द कंपनी इज यूजिंग। और अगर वो परसेंटेज ज़्यादा होगी तो फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होगा और रिस्क प्रीमियम ज़्यादा चार्ज होगा। और अगर फाइनेंशियल रिस्क डेट लेवल कम होगा तो फाइनेंशियल रिस्क भी कम होगा, और जो इन्वेस्टर्स होंगे वो लेस जो है वो रिस्क प्रीमियम जो है वो डिमांड करेंगे। तो रिस्क वर्स में अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिस्क प्रीमियम जो है वो स्टॉक होल्डर ज्यादा डिमांड करेंगे। इसी वजह से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिक्योरिटीज के ऊपर इंक्रीज कर जाए। लिक्विडिटी रिस्क। So what is liquidity risk? It is the uncertainty introduced by the secondary market for investment. Or it depends on two things. First is how long will it take to convert an investment into cash, and how certain is the price that will be received. लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली क्या है? ये सेकेंडरी मार्केट जो है उसमें हम इसको कंसिडर करते हैं। सेकेंडरी मार्केट जैसे कि आपकी क्या स्टॉक मार्केट है। जब आप सिक्योरिटीज को एक दफा सेल कर देते हैं तो आप उसको प्राइमरी मार्केट में सेल करते हैं। अब जब सेकंड टाइम उनकी ट्रेडिंग होती है तो वो फिर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। अब ये करता है कि क्या सेकेंडरी मार्केट में वो जो एसेट है या जो सिक्योरिटी है वो कितने जल्दी कन्वर्ट हो जाता है टू कैश। अगर वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जल्दी कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब है कि वो जो सिक्योरिटी है वो लिक्विड लिक्विड सिक्योरिटी है या हाईली लिक्विड है। और अगर वो टाइम लेता है उसको कन्वर्ट करने में इनटू कैश, तो इसका मतलब है कि वो लेस लिक्विड है। और ज्यादा टाइम लेगा तो इसका मतलब है वो इलिक्विड एसेट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो प्राइस जो है उसके ऊपर आप कितनी प्राइस रिसीव करेंगे। तो हमें अगर हम उसके ऊपर फेयर प्राइस रिसीव करते हैं तो तो फिर तो वो लिक्विड है। अगर लेकिन अगर हम उस पे फेयर प्राइस रिसीव नहीं करते और हमें उसमें लॉस होता है बहुत ज्यादा, तो फिर हम ऐसा जो एसेट है वो लिक्विड नहीं हो। तो लिक्विडिटी जो है वो डिपेंड करती है इस दो चीजों के ऊपर, एक तो उसकी टाइमिंग के ऊपर, दूसरा उसकी फेयर प्राइस के ऊपर। अगर आप फेयर प्राइस रिसीव करते हैं और आप जल्दी उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में, तो वो सिक्योरिटी जो है वो हाईली लिक्विड है। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों चीजें कम होती जाएंगी, वहां पे लिक्विडिटी रिस्क जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। और अगर लिक्विडिटी रिस्क इंक्रीज करता जाएगा तो इन्वेस्टर जो है वो रिस्क प्रीमियम डिमांड करेगा। और ये डिपेंड करेगा कि उस सिक्योरिटी के ऊपर कितना लिक्विडिटी रिस्क है। एक्सचेंज रेट रिस्क। So it is the uncertainty of return is introduced by acquiring securities denominated in a currency different from that of the investor. Changes in exchange rates affect the investor's return when converting an investment back into the home currency. तो एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या है? ये उसको हम इसको कंसिडर करते हैं जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है फॉरेन सिक्योरिटी जो कि लोकल करेंसी के अंदर डिनोमिनेट नहीं होती, बल्कि फॉरेन करेंसी के अंदर डिनोमिनेट होती है। और उस पर जो रिटर्न हमें मिलता है हम उससे फिर कन्वर्ट करते हैं होम करेंसी। तो अगर एक्सचेंज रेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर है और पाकिस्तान रुपी है, तो इसका एक एक्सचेंज रेट है, एक डॉलर जो है वो कितने पाकिस्तानी रुपये के इक्वल है। अगर हम फॉरेन सिक्योरिटी में करते हैं जो कि यूएस डॉलर के अंदर डिनोमिनेट है, तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारा जो एक्सचेंज रेट है इसमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। अगर ये कभी ऊपर जा रहा है और कभी नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर स्विंग्स ज़्यादा हैं, तो इसका इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इसमें रिस्क ज़्यादा है। अगर रिस्क ज़्यादा हो तो हम 100% श्योरिटी या हम सर्टन नहीं होते कि हम एट द एंड ऑफ द डे हम क्या रिटर्न अर्न करें। जब हम सर्टन नहीं होते और जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होगा। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो फिर हम जो इन्वेस्टर होगा वो उसके अगेंस्ट रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा। तो रिस्क का लेवल अगर बढ़ता जाएगा तो रिस्क प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा, और रिस्क का लेवल अगर कम होता जाएगा तो रिस्क प्रीमियम भी कम होता जाएगा। हमारे जैसे करेंसी आप देखते हैं कि उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी तो ऐसी करेंसी जो है वो रिस्की है। सेकेंडली ये है कि बेनिफिट कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सचेंज रेट जो है, अगर हमारी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट करती है, तो अगर हमें डॉलर में रिटर्न मिलता है तो हम ज्यादा पैसे हमें मिलेंगे। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट जो है, अगर हमारी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट करती है, तो तो उसका नतीजा ये होगा
कि हमें जो पैसे मिलेंगे जो डॉलर है उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे होम करेंसी में तो हमें कम कम जो है पैसे मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उसमें फ्लक्चुएशन कितनी है। अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, अगर उसमें अप्स एंड डाउन ज़्यादा हैं, करेंसी कभी ऊपर जा रही है और कभी नीचे जा रही है, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो जाते हैं कि आप क्या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर अर्न करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक्सचेंज रेट रिस्क ज़्यादा हो जाए या एक्सचेंज रेट रिस्क एग्जिस्ट करता हो, वहाँ पे आप रिस्क प्रीमियम चार्ज करेंगे, और एक्सचेंज रेट रिस्क अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप ज़्यादा रिस्क प्रीमियम चार्ज करेंगे। लेकिन ये वहाँ पे हम इसे कंसिडर करेंगे उन सिक्योरिटीज में जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट करेंसी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो, ना कि लोकल करेंसी के अंदर। कंट्री रिस्क। Political risk is the uncertainty of returns caused by the possibility of a major change in the political or economic environment in a country. Individuals who invest in countries that have unstable political economic systems must include a country risk premium when determining their required rate of return. कंट्री रिस्क जो है मेरा ख्याल है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। और पाकिस्तान की अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो जहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क सबसे हाई होता है, तो अगर पॉलिटिकल रिस्क हाई होगा, पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, और आप कभी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, कभी नेशनलाइजेशन करेंगे, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ चेंज होती रहेंगी। और अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, हमें श्योरिटी नहीं होगी कि कल क्या होने वाला है, तो वहाँ पे उस कंट्री का रिस्क प्रीमियम जो है वो रिस्क लेवल ज़्यादा होगा और रिस्क प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। और इसके लिए अगर आपको मैंने कहा था शायद कि आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो हैं उनको तो स्टडी करें और देखें कि पाकिस्तान की क्या रेटिंग है, तो वो भी डिटरमिन करते हैं कि इस कंट्री का रिस्क का लेवल क्या है। तो उस रिस्क के लेवल को आप जो है वो कंसिडर करेंगे व्हेन यू डिटरमिन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो वो इस कंट्री रिस्क जो है उसको ज़रूर जो है वो कंसिडर करेगा। इसलिए अगर हम कहीं दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम उसी तरह दूसरे मुल्क के कंट्री रिस्क को भी स्टडी करेंगे, इस कंट्री का रिस्क का लेवल कितना है। और अगर हम उसका क्रेडिट एजेंसीज के ऊपर रिलाय करें तो रेटिंग्स हमें बताती हैं कि इस कंट्री का रिस्क का लेवल जो है वो क्या है, उसके मुताबिक हम जो है वो रिस्क प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो रिस्क प्रीमियम इज द फंक्शन ऑफ बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड कंट्री रिस्क, या आप इसको कहते हो कि इट्स फंक्शन ऑफ सिस्टमैटिक मार्केट रिस्क। सिस्टमैटिक मार्केट रिस्क जो है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो खैर आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे, और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन दी interactive session.